Assalamu alaikum. How are you all? People are joining the lecture, and I will shortly start the lecture, inshallah. Please mute. Please. I have muted all of you because आप लोगों को पता नहीं चल रहा होता. I'll wait for like 5 minutes, and after that I will start the lecture, inshallah. Okay. I cannot listen to you because I have muted all of you. जब आप लोग बहुत ज़्यादा बोलते हो ना तो फिर डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है, फिर समझ नहीं आती. At the end of the lecture, I will unmute so we can have some sort of discussion. Hurry up, join the lecture. If you want to talk, you can chat, okay? I cannot listen to you because मैंने आप सबको म्यूट कर दिया है, उसकी वजह से ना. ओके इकरा, वेलकम. जब आप लोग अनम्यूट होते हैं तो बैकग्राउंड की बहुत ज़्यादा शोर आता है बैकग्राउंड से. मुझे चैट्स में बताएं कि एम आई ऑडिबल टू यू. Okay, Rahila, thank you so much. Thank you so much, Bushra. Yes, this is the right way. You can, if you want to talk to me, you can chat. Oh, and after that, I will unmute you at the end of the lecture. So we can have discussion. Like, there are people coming over. Sure, for sure. I can speak as much louder as you will ask me. I have got a really loud throat in that term. I just want to unmute you so that we can have a little bit chit chat before the lecture starts. Okay, any other concerns? We have 9 students in our class. Let the others come and then I will start. Should I start the lecture? Please tell me in the chat box. Or we should wait a little bit longer for other candidates. Oh, that's so sweet. Off your video. Who is this? Okay, good. So let me just start our lecture. I'm going to add a PowerPoint presentation so we can start our lecture. And before I start the lecture, I would like to tell you the purpose of this
meeting or this orientation class. This class is actually not the preparation of IELTS or OET. It's pre-IELTS and pre-OET English Foundation course, as it is self-explanatory. The title is self-explanatory. इस क्लास में हम हमारा जो मेजर कंसर्न होगा ना, वो होगा हमारा फाउंडेशन लेवल। और इसमें आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने लेवल्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, और क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, किस ऑप्टिमम या किस सर्टेन लेवल पे आपको होना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट योर प्रेपरेशन फॉर आइल्स और ओईटी। बिकॉज नॉर्मली हम लोग गलती ये करते हैं कि हम लोग गलती ये कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि हम लोग अपनी फाउंडेशन पे काम किए बगैर, आई गेस समवन इज कुछ मेरी वॉइस ब्रेक डाउन हो रही है। बाकी सब लोग मुझे बताएं कि मेरी आप मुझे सुन सकते हो इस टाइम इजीली। प्लीज टेल मी कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हो इजीली चैट्स में। यस मैम, आपकी आवाज आ रही है, सुन रहे हैं आपको। चलें ठीक है। चलें, दैट्स वंडरफुल। अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही है, मैंने इधर पिन लगाई थी, अब मैंने उसको रिमूव कर दिया है। तो चलें फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। आई थिंक सो जिन लोगों ने ज्वाइन करना था वो ज्वाइन कर चुके हैं। बाकी जो लोग नहीं आ सके, वी कैन शेयर द रिकॉर्डिंग, वो देख सकते हैं बाद में। तो Bismillahirrahmanirrahim. Let me introduce myself. My name is Afia Shams, and I am English lecturer at University of Child Health Sciences. And I warmly welcome all of you in this orientation class. और आज की ये जो क्लास है, this is open for everyone. आप if you want to invite your लाइक colleagues और फ्रेंड्स, आप इसको भी इसमें इनवाइट करना चाहें, यू कैन शेयर द जूम लिंक एंड एनीबडी इज वेलकम हियर। ये आज की क्लास जो है, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, दिस इज ओरिएंटेशन क्लास। एंड आप इस क्लास के बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला जो अपने बाकायदा सेशंस हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज दिस? First of all, let me just tell you कि this is the pre-IELTS and pre-OET orientation class। इसमें जो हमारा core focus होगा, that is your English foundation। और normally जो हमारे पास English के courses होते हैं, उनमें होता ये है कि विदाउट इनिशियल असेसमेंट, विदाउट इनिशियल बैकग्राउंड चेक के बगैर हम लोग जो है वो स्ट्रेट अवे या तो अपना आयल्स या ओईटी की प्रेपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, या फिर हम जो मार्केट में होते हैं लाइक स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज उनको, या ग्रामर कोर्सेज उनको ज्वाइन कर लेते हैं, ये देखे बगैर कि व्हाट आर द मतलब व्हाट आर द इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसमें आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बिकॉज एट द एंड ऑफ दिस क्लास आई एम गोइंग टू शेयर एन असेसमेंट टेस्ट विथ यू। आप उसको यू कैन टेक दैट टेस्ट, एंड जैसे ही आप उसको सबमिट करोगे, दैट इज़ एन ऑनलाइन टेस्ट, आपको आप ऑनलाइन ही अटेम्प्ट करोगे, एंड एज एज सून एज यू सबमिट द टेस्ट, उसके साथ ही आपको उसके स्कोर्स भी मिल जाएंगे। एंड देन यू गाइस आर सपोज टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर टेस्ट एंड शेयर इट विद मी। तो उससे फिर मैं आपको बता पाऊंगी कि बल्कि मैं आपके साथ स्कोरिंग क्राइटेरिया भी शेयर कर दूंगी कि वेयर आर यू स्टैंडिंग राइट नाउ। आपकी फाउंडेशन जो है वो इस टाइम किस लेवल पे स्टैंड करती है, उसको हमने बाकायदा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने उसको कैटेगराइज किया है। आप लोगों को मैं फर्दर इस लेक्चर में बताऊंगी भी। ठीक है, तो आज की एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टेक इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैब टेस्ट। एक्सक्यूज मी मैम, जी
मैम बहुत से स्टूडेंट्स को कनेक्ट नहीं हो रहा, प्रॉब्लम आ रहा है उनको। कनेक्ट नहीं हो रहा, लेट मी हाँ चेक। जी, बहुत से स्टूडेंट्स का ये इशू आ रहा है। अच्छा, लेट मी चेक इट, लेट मी चेक इट आउट। आप लोग एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं ज़रा इसमें देख लूं कि कोई हमारे पास। जी मैम, आप प्लीज रीशेयर कर दें ताकि वो दोबारा उसी लिंक पे जाके ज्वाइन करें। ये जो हमारा लिंक है ना, जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है, हमारा इंशाल्लाह ताला पूरा महीना यही लिंक चलेगा। तो आप उन्हें कहें कि वो लीव करके तो दोबारा ज्वाइन करें। जब वो दोबारा ज्वाइन करेंगे मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो मैं उनको एंटर कर लूंगी, ठीक है। जी जी मैम, मैंने बताया लेकिन ज्यादातर लोगों को ब्लैंक शो हो रहा है, इस वजह से मैंने कहा। चले मैं रीशेयर कर देती हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। थैंक यू। गिव मी अ सेकेंड। सॉरी बच्चों, आज बिकॉज फर्स्ट टाइम है, तो मोस्टली डे वन पे ना बहुत सारे लोगों को आता है प्रॉब्लम। जिनका शेयर नहीं हो, जिनसे ज्वाइन नहीं हो रहा ना, एक देयर कैन बी एन अदर इशू। उनसे पूछिए उनका इंटरनेट स्टेबल है या नहीं। ओके मैम। ठीक है, उनसे पूछिए कि उनका ओके। इंटरनेट स्टेबल है कि नहीं। आई एम रीशेयरिंग द लिंक इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। तो स्क्रीन पे आप लोगों को इस टाइम पीपीटी शो हो रही है ना। यस मैम, शो हो रही है। जी ठीक है। तो ये था हम थोड़ा सा इसके बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आज के लेक्चर के एंड पे हम बस वोकैब और ग्रामर का आपका टेस्ट लेंगे। और फिर जिस तरह से ग्रेजुअली आप लोग प्रोग्रेस करते जाओगे सेक्शन वाइज, उसी तरह से फिर आपका साथ साथ चारों मॉड्यूल्स को हम साथ लेके चलेंगे। बट बिफोर जंपिंग टुवर्ड्स द मेन मॉड्यूल्स लाइक रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, वोकैब एंड ग्रामर आर क्रूशल, क्योंकि बेसिक्स हमारी ग्रामर और वोकैब है। जब तक हमारी ये दो चीज़ें इम्प्रूव नहीं होंगी, एक सर्टन ऑप्टिमम लेवल तक नहीं आएंगी, उस टाइम तक हमें दूसरे मॉड्यूल्स पे काम करने का उतना फायदा नहीं होगा, बिकॉज हम अपनी मिस्टेक्स को ओवर एंड ओवर अगेन रिपीट करते जाएंगे। तो इसलिए आज मैं आप लोगों को ये दो टेस्ट दूंगी, आप लोग इनको करोगे अटेम्प्ट, और आफ्टर दैट फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमने ग्रामर पे टाइम स्पेंड करना है, उसको कितना टाइम देना है, अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ योर टेस्ट रिजल्ट्स, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम ना फर्दर प्रोसीड करेंगे। अब बाकी मैं स्लाइड वाइज आप लोगों के साथ चीज़ें जो है वो शेयर करती जाती हूँ, ठीक है। हाँ, ये तो वही है जो आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि मैंने ऑलरेडी सारा आपको डिस्क्राइब कर दिया है। अब हम देखते हैं कि हमारे कोर्स का ड्यूरेशन कितना होगा। मैं आपको ये बताती जाऊं कि आज के इस लेक्चर में हम दो तीन चीज़ें जो है ना उनको फोकस में रखेंगे। एक तो मैं आपको ये ओवरव्यू दूंगी हमारे इस कोर्स के सारे डिज़ाइन का, कि इसको किस तरह से हमने डिज़ाइन किया है, व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ आवर कोर्स एंड what are the methods we are going to use in this course. एंड सेकेंडली हम इसमें थोड़ा आइल्स और ओईटी का भी ओवरव्यू देखेंगे। और बिकॉज आर मेन फोकस इज नर्सिस एंड मिडवाइफ्स, और हमारा जो ग्रुप है ये 100% कंसिस्ट ऑफ नर्सिस एंड मिडवाइफ्स। तो इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि डिफरेंट कंट्रीज में आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। ऑल्दो अभी हम फाउंडेशन पे काम करेंगे, अभी हम इस सेशन में हम टोटल ही समझेंगे, बेसिक्स पे काम करेंगे, अपनी बेसिक्स को इम्प्रूव करेंगे। बट एट द सेम टाइम वी शुड नो कि व्हाट इज द अल्टीमेट गोल जिसको हम अचीव करना चाह रहे हैं इन दिस सेशन एंड आफ्टर दिस सेशन इन द फ्यूचर, ओके। तो दिस सेशन इज गोइंग टू बी, इसमें मेरे पास फोर वेरिएशंस होंगे, थ्री वेरिएशंस में आपको थ्री ऑप्शंस दूंगी। फर्स्ट इज 4 वीक्स, सेकंड इज 8 वीक्स एंड थर्ड इज 12 वीक्स। That totally depends upon the result of your test. If you are already on an optimum level, like if you are already on B1 level, so in that case there is no need to waste time on basics. But if you are at A2 level or A1 level, especially in grammar, especially in grammar.
तो फिर हम थोड़ा सा आई वुड रिकमेंड कि आप उस पर ज़रा ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। वो फिर इंडिविजुअली आप लोगों के टेस्ट के रिजल्ट की बेस पे वन एंड वन आप लोगों को मैं इंफॉर्म करूंगी कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। सेकंड जो हमारा इसमें गोल होगा, दैट इज बिल्ड इंग्लिश फाउंडेशन फॉर नर्सेज टू ट्रांजिशन स्मूथली इनटू आइल्स और ओईटी। इस 1 मंथ या 2 मंथ में हम जो भी टाइम स्पेंड करेंगे अपनी लैंग्वेज पे, इसके बाद आई जस्ट वांट यू गाइस टू start your OET preparation or IELTS preparation without getting worried of your grammar, without getting worried of your vocabulary, without getting worried of your listening skills or speaking skills. The third goal of this course is strengthen communication, emphasis on grammar and vocabulary, and special focus will be on the healthcare specific English language communication. And the last but not least is improve test taking strategies for professional exams. तो इसमें ये चीजें जो है ना वो हमारा कोर फोकस होगा। और क्लासेस कितनी होंगी? हमारी क्लासेस होंगी 3 days a week क्लास होगी। बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारे इस सेशन में वी विल फोकस ऑन प्रैक्टिस। मैक्सिमम फोकस हमारा होगा प्रैक्टिस पे। और प्रैक्टिस क्यों, बेशक हम इफ इफ आप ऐसे होता है कि आपके टेस्ट के रिजल्ट में आपका स्कोर जो है दैट इज नॉट appropriate yet, you need to work on your grammar or you need to work on your basics foundation। उसमें भी मैं फिर आपको जो मेरा मेजर कंसर्न इसमें होगा ना, दैट विल बी इम्प्रूविंग योर स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल जो है डे 1 से हम उसको साथ लेके चलेंगे। बेशक हम A1 लेवल पे हों, बेशक हम A2 पे हों, बेशक आप मेरी तरफ से C2 पे अगर आ जाते हो, फिर भी मैं आपको ये कहूंगी कि स्पीकिंग पे फोकस होना चाहिए। हम बाकी स्किल्स में फिर भी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, रीडिंग राइटिंग की अच्छी प्रैक्टिस होती है हमारी। बट मोस्टली मोस्टली स्पेशली इन आवर ग्रुप ऑफ पीपल, जो है हमारा ये जो हमारा सर्कल है, इसमें स्पीकिंग पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए 2-3 स्ट्रेटजीज जो हैं वो हम स्पेशली फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक पेयर्स एंड ग्रुप्स ऑफ यू गाइस, ठीक है। एक तो हमारा ओवरऑल ग्रुप है, दूसरा फिर जैसे आप अगर फ्रेंड्स हैं या वैसे भी 2-2 लोगों के मैं पेयर बना दूंगी। एक दिन हमारी क्लास होगी और नेक्स्ट डे आपका प्रैक्टिस प्रैक्टिस का होगा। और उसमें मैं आपको सर्टेन गोल्स दूंगी जो आपने एक दिन में हाफ एन आवर और 1 आवर आप लोगों ने अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करना है ऑन certain topics, and you guys will be supposed to record that communication and send it to me। so हम उसमें से आपकी मिस्टेक्स जो हैं उसको मैं देखूं और फिर नेक्स्ट डे लेक्चर में हम उन मिस्टेक्स को भी डिस्कस करेंगे। और फिर उसके साथ साथ जो हमारा प्लान मटेरियल होगा उसको भी लेके चलेंगे। इन दैट वे जो हमारा कोर्स होगा ये बिल्कुल एक कस्टमाइज टाइप ऑफ पैकेज बन जाएगा, जो कि हर बच्चे की, हर स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल नीड्स को फुलफिल करेगा। और जैसे मैंने 3-4 दफा बता दिया कि स्पेशल एम्फेसिस विल बी ऑन आवर स्पीकिंग स्किल्स। अब इसमें क्योंकि एवरेज जो है ना 8 वीक्स रिक्वायर्ड होंगे इफ यू आर ऑन अ B1 लेवल। तो और मोस्टली जो स्टूडेंट्स होंगे आई होप सो दे विल बी ऑन B1 लेवल। आज का जो हमारा स्कोर जो हमारा टेस्ट होगा उसके एवेलुएशन में, तो अगर वो आइडियली आप स्कोर्स को मीट करते हो, या जो मेरा एक अप्रोक्सीमेशन है उसके लिहाज से जो एवरेज स्टूडेंट्स हमारे होंगे, उस हिसाब से मैंने आपको ये ब्रेक डाउन में आपको बता रही हूँ। अदरवाइज दिस कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द स्कोर्स, ठीक है। तो वीक 1 में हमारा ओरिएंटेशन और फाउंडेशन पे फोकस होगा। पहला लेक्चर आज है, नेक्स्ट 2 लेक्चर्स जो होंगे वो साइमल्टेनियसली होंगी, एक दिन छोड़ के अगले दूसरे दिन। सेकेंड वीक में वी विल रिवाइज ग्रामर एंड वोकेबलरी।
थर्ड वीक में हम लिसनिंग पे काम करेंगे, फोर्थ वीक में हम स्पीकिंग पे काम करेंगे। जो लोग जस्ट 4 वीक्स ही लेना चाहें, 1 मंथ लेना चाहें, उनके लिए ये यहाँ तक होगा। बट अगर आपको लगे कि आपको और भी पॉलिश होना है, देन फिफ्थ वीक, और मैं भी ये रिकमेंड करूंगी कि यू शुड एटलीस्ट spend 2 weeks, like 2 months and 8 weeks. तो फिफ्थ वीक में we will be covering the reading skills, सिक्स्थ वीक में we will cover writing skills, एंड सेवन्थ में हम स्पीकिंग एंड राइटिंग को ज्वाइन कर लेंगे। और एट्थ वीक जो होगा वो हमारे मॉक टेस्ट और फाइनल प्रेप होगी। और उसके बाद जब ये आप लोग ये वाला सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे ना, तो फिर आपको बस थोड़ी सी और प्रेपरेशन की जरूरत होगी। फाइनल आपको सिर्फ पॉलिश की जरूरत होगी। लाइक आप उसके बाद जस्ट 4 वीक्स ही लगाओगे, तो आप आईएलटीएस या ओईटी के लिए इंशाल्लाह ताला अपने रिक्वायर्ड स्कोर्स तक पहुंच जाओगे। और सारा ये जो हमारा होगा टोटल प्रेपरेशन जो होगी, ये आप सब लोगों की इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग होगी। आई रिपीट अगेन एंड अगेन कि इसमें जो सोल फोकस होगा दैट विल बी योर इंडिविजुअल नीड्स। एंड इसमें आपके जितने आज हमारा वोकैब और ग्रामर का टेस्ट होगा, उसके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग फिर हम कल से डिसाइड करेंगे कि हमने किस तरह से सेशन को लेके चलना है। बट डेली आपके एक दिन लेक्चर, दूसरे दिन आपकी प्रैक्टिस, आप स्ट्रेट वो प्रैक्टिस मुझे शेयर करेंगे। और फिर आप सबके उस प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर जो है वो डिजाइन करूंगी, सो दैट ये सिर्फ एक खानापुरी वाली बात ना हो। एक ट्रेडिशनल कोर्सेज लेके जब आप लोग डिसअपॉइंट हो जाते हो, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने शेयर भी किया था कि हमने फलां फलां अकेडमी से स्पोकन इंग्लिश की या इंग्लिश बेसिक्स फाउंडेशन के कोर्सेज लिए हैं, तो वो बस वही पूरा पूरा महीना ही टेंसेस को रिवाइज करते रहते हैं, तो कोई खास इम्प्रूवमेंट होती नहीं। तो इसमें जिस बच्चे को टेंसेस रिवाइज करने की जरूरत होगी उसके लिए टेंसेस रिवाइज होंगे, बहुत सारी चीजें लेक्चर्स में कवर होंगी, और बहुत सारी चीजें जो है वो ऑफलाइन कंटेंट, ऑफलाइन वीडियो लेक्चर्स जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड एट द एंड ऑफ द डे, I cannot promise you anything unless or until, ये अब फोकस की बात है। I cannot promise you anything unless or until you are committed। आपकी जो इम्प्रूवमेंट है, आपकी जो टोटल है सारा रिजल्ट, ये ये 100% डिपेंड करता है आपकी कमिटमेंट और आपकी डेडिकेशन के साथ। जितना ज्यादा आप इसमें इनपुट दोगे, क्योंकि language is like a skill, language is like a skill, just as you cook something। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो कुकिंग में आपकी, उतनी जितनी ज्यादा एक चीज को आप बार बार कुक करते हो, उतना ज्यादा उसमें आपकी स्किल पॉलिश होती जाती है, उतना ज्यादा आप बेहतर तरीके से उस चीज को करते हो। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस इंक्लूड्स द 4 modules। Practice includes practice of listening, practice includes practice of speaking, practice includes practice of reading, and practice includes practice of writing। अब जो हमारे 4 होंगे असेसमेंट टेस्ट, उसमें आपका लेवल इस टाइम आप कितने पानी में खड़े हैं वो आपके सामने आ जाएगा क्रिस्टल क्लियर होके। तो उसके बाद फिर किसी ने चैट में कुछ कहा हुआ है। Yes, of course, I will provide रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द लेक्चर्स। इसकी डायरेक्ट हमारी, जैसे ही आपका लेक्चर, ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा, स्ट्रेट अवे आफ्टर फ्यू मिनट्स जो रिकॉर्डिंग है वो आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी। एंड यू कैन वॉच द लेक्चर्स ओवर एंड ओवर अगेन, जितनी बार आपका दिल करे। और अगर आपका मिस भी हो जाता है लेक्चर कोई, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको जब आपके पास टाइम होगा आप देख सकते हो। और इसमें एक आप लोगों ने मेरे साथ प्रॉमिस करना है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, जितनी आपसे बोली जाए उससे भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह ताला यू कैन अचीव योर ड्रीम लेवल ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। और ज़रूरी नहीं है कि अब्रॉड जाने के लिए ही आपने अच्छी लैंग्वेज, आपकी अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। इवन कहीं पे भी आप जाते हो, आप अपनी वार्ड में काम करते हो, व्हेन यू आर अ वेल स्पोकन पर्सन, व्हेन यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स,
You can communicate with your patients, you can communicate with your consultants especially. और पाकिस्तान में तो the competency is directly proportional to your English speaking skills. आप जितने मर्जी competent हो, if you are not good enough at your speaking skills, बहुत सारी जगहों पे आप लोगों के साथ नाइंसाफी हो जाती है। तो इंशाल्लाह ताला हम इस सारी चीज़ों को कवर करेंगे। चलो, लेट्स कम टू द पॉइंट। जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि इसमें हम अ, अ, देखेंगे। अभी आप लोगों को के साथ मैं असेसमेंट टेस्ट शेयर करूंगी और उसके बाद आपका स्कोर्स होगा। तो हम देखते हैं कि क्या लैंग्वेज के लेवल्स होते हैं डिफरेंट, जो इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड्स हैं। तो कोई भी लैंग्वेज है, चाहे वो बी इट उर्दू, बी इट पंजाबी और बी इट इंग्लिश, उसके ये सिक्स, ब्रॉडली स्पीकिंग, सिक्स लेवल्स होते हैं। A1 इज द बिगिनर लेवल, जब आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो, थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर सकते हो। A2 लेवल इज एलिमेंट्री लेवल, मतलब जितना हम मैट्रिक तक जाके जितनी हमें लेवल, जितनी लैंग्वेज आती है उसके उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब आप लाइक A2 लेवल में यू कैन ऑर्डर योर फूड इन द रेस्टोरेंट, यू कैन कम्युनिकेट योर नीड्स, इस तरह से। B1 जो है इंटरमीडिएट लेवल है, और एटलीस्ट प्रोफेशनल जो कोर्सेज होते हैं, लाइक आइल्स, पीटीई और ओईटी, उसकी तैयारी शुरू करने के लिए कम से कम आपको B1 पे होना चाहिए। अदरवाइज यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर मनी। तो आप एटलीस्ट B1 से B2 पे आएंगे, देन यू विल बी एबल टू ग्रेस्प ऑल द क्वेश्चंस, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ओईटी एंड आइल्स। फिर आ जाता है उसके बाद C1 इज एडवांस्ड लेवल एंड C2 इज प्रोफिशिएंट लेवल। और मोस्टली कंट्रीज जो हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज सच एज USA, UK, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो हमसे रिक्वायर करते हैं कि वी शुड बी एट C1 लेवल। जब हम C1 लेवल पे जाते हैं, तो वो वाला स्कोर जो है वो हमारा एक्सेप्टेबल होता है। C1 पे जाके आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेशनल लेवल पे जॉब सिक्योर कर सकते हैं। तो इसमें हमारा पर्पस ही यही है कि हमने A2 या B1 पे अगर आप हैं, तो आप C1 पे जाएं या एटलीस्ट B2 पे चले जाएं। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट फॉर नर्सिस, वही मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि एटलीस्ट B2 लेवल पे जब हम होंगे, तो फिर हम इस काबिल होंगे कि हम इंटरनेशनल जॉब के लिए सोच सकें। अब बिकॉज दिस कोर्स इज प्री आइल्स एंड प्री ओईटी कोर्स, तो इसमें बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी ये बात पता होगी, बट अगेन लेट मी रिफ्रेश इट फॉर यू गाइस कि व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन आइल्स एंड ओईटी। आइल्स एंड ओईटी दोनों जो हैं, ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड लैंग्वेज टेस्ट हैं। जो आइल्स है, दिस इज अ जनरल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का जनरल टेस्ट होता है, जनरल लैंग्वेज टेस्ट होता है। बट जो ओईटी है, ये स्पेसिफिकली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, सच एज नर्सिस, डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट एटसेट्रा। और ये नर्सिस का सेपरेट है, डॉक्टर्स का सेपरेट है, अकॉर्डिंग टू आर requirements of our profession, according to requirements of our communication. तो nurses are highly recommended कि they should go for OET, बट इसमें हम आइल्स का भी ओवरव्यू दे देंगे, बिकॉज आइल्स इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल इन वेरियस कंट्रीज। तो वो फिर आप इसमें दोनों की ओरिएंटेशन इस कोर्स में फर्दर आपको हो जाएगी, दोनों ओईटी की भी और आइल्स की भी। जो आप लोगों को इजी लगे, जो आपको लगे कि यस दिस इज माय थिंग, आई शुड गो फॉर दिस, तो वो मैं आप मतलब उसकी तरफ आप जा सकते हो। बट ओवरऑल, व्हेन यू आर स्टूडेंट ऑफ अ लैंग्वेज, व्हेन यू आर स्टूडेंट ऑफ अ सर्टेन कैटेगरी, तो आपको एक जनरल नॉलेज होना चाहिए। भले आप ओईटी की तैयारी कर रहे हो, बट आपको दूसरी भी जो उसके सिमिलर टेस्ट हैं उनके बारे में भी आपका होना चाहिए नॉलेज अच्छा। सेकंड, इसमें इस स्लाइड को मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, यू कैन गो थ्रू इट, ठीक है। इसमें फर्दर हमने बताया हुआ है कि क्या स्कोर्स होते हैं। स्कोर्स रिपोर्टिंग जो है, आइल्स प्रोवाइड स्कोर ऑफ 0 to 9 इन हाफ इंक्रीमेंट्स, एंड ओईटी
स्कोरिंग जो है ना वो आइल्स में होती है बैंड्स में, 0 से लेकर 9 बैंड तक होती है। और जो ओईटी में स्कोर्स हैं वो पॉइंट्स में होते हैं, लाइक 0 से लेकर 500 पॉइंट्स तक। ये वही चीजें जो है उनको फर्दर मैंने कैटेगराइज कर दिया है। आप इसको बाद में देख सकते हैं। लेवल्स हैं हमारे एक तरफ लैंग्वेज के, जो इंटरनेशनल लेवल्स हैं प्रोफिशिएंसी के। नेक्स्ट उसमें आइल्स के बैंड्स हैं कि कितने स्कोर्स होंगे तो आपका प्रोफिशिएंसी लेवल कहाँ पे होगा, और ओईटी के ग्रेड्स हैं कितने लेवल्स होंगे तो आपका प्रोफिशिएंसी लेवल कहाँ पे होगा। तो मेजर नॉर्मली ओईटी में आपको बी से सी, राइटिंग में आपका सी भी चल जाता है, बट बाकी के तीनों मॉड्यूल्स में यू शुड एटलीस्ट हैव बी ग्रेड। और अगर आप आइल्स की तरफ जाते हैं तो आपके 7 बैंड्स हों, फिर यू विल बी एबल टू सिक्योर अ गुड जॉब। देन ये मैंने आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन के लिए ना थोड़ा सा कुछ चीज़ें इसमें ऐड की हैं, इसको लेटर ऑन यू कैन रीड इट योरसेल्फ। डिफरेंट कंट्रीज की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका मैंने थोड़ा बताया आपको, और उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऑस्ट्रेलिया का इधर बताया कि बिकॉज मोस्टली आप लोगों का अल्टीमेट गोल तो यही है ना कि यू वांट टू मूव टू अ बेटर कंट्री, स्पेशली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए। यही आपके ड्रीम कंट्रीज हैं। तो इसमें मैंने आपके लिए बता दिया है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो कि आइल्स अगर आप इफ यू ऑप्ट आइल्स देन यू मस्ट हैव 7 बैंड्स, एंड इफ यू ऑप्ट ओईटी तो मिनिमम आपका बी ग्रेड होना चाहिए। तो बी ग्रेड आपका कब होगा, व्हेन यू आर एट C1 लेवल। और 7 बैंड्स भी आपके तब होंगे जब आप C1 लेवल पे होंगे। तो इसमें इस कोर्स में हम इंशाल्लाह ताला साथ साथ आपका अ, जो लैंग्वेज असेसमेंट है उसको करते जाएंगे। आज जो आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे आप आज भी उसके स्कोर्स देखना, एंड एट एट द एंड ऑफ 4 वीक्स आप इस टेस्ट को दोबारा अटेम्प्ट करना, एंड यू विल बी एबल टू नो। आप अपनी प्रोग्रेस को खुद ही ट्रैक कर सकोगे। मैं कोई इसमें बहुत बड़े बड़े क्लेम्स नहीं करूंगी, बट इंशाल्लाह आई आई प्रॉमिस यू के यू विल फील द डिफरेंस। बिकॉज इसमें हमने गैर ज़रूरी चीज़ें, इधर उधर की चीज़ें करनी ही नहीं है, हमने टू द पॉइंट रहना है। जो हमारा फोकस है उसी पे हमने इंशाल्लाह ताला फोकस रह के चलना है। फिर आई हैव गिवन यू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूके। यूके में जो हमारी होती है यूके की द नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल है, एनएमसी, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिस, और वही सेट करती है ग्रेड्स। और मोर और लेस इक्वल इक्वल है सब सब कंट्रीज की रिक्वायरमेंट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में होती है CGFNS, ठीक है, उसकी भी डिपेंड करता है स्टेट्स पे, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में तकरीबन 50 फर्दर स्टेट्स हैं। स्टेट्स जैसे कि हमारे प्रोविंस होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में स्टेट्स होती हैं, तो हर स्टेट का वहाँ पे डिफरेंट रिकमेंडेशंस होती हैं। बट ओवरऑल 6.5 से अबव बैंड हो आपके, और आपका बी ग्रेड कम अज कम हो ओईटी में, तो आप मतलब सही सेफ स्कोर उसमें आते हो, सेफ ग्राउंडिंग में। नेक्स्ट कनाडा का बताया हुआ है। एंड इसके बाद अब न्यूजीलैंड का भी मोर और लेस सेम ही है। व्हाट डज आवर फाउंडेशन कोर्स ऑफर, हम इसमें आपको ऑफर करेंगे असेसमेंट टेस्ट। असेसमेंट टेस्ट आपके 4 होंगे। आज आपका ग्रामर एंड वोकैब टेस्ट होगा, एंड नेक्स्ट वीक जो लोग ज्वाइन करेंगे, जो लोग कंटिन्यू रखेंगे, फिर उनका जो उनके फर्दर स्पेशलाइज्ड टेस्ट होंगे, लाइक रीडिंग एंड राइटिंग एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग। आज का जो जेनेरिक टेस्ट है जो सबके लिए अवेलेबल है, दैट इज ग्रामर एंड वोकैब टेस्ट, और उसका स्कोरिंग क्राइटेरिया इस तरह से होगा कि टोटल 20 मार्क्स का मैं आप लोगों को टेस्ट दूंगी, एंड इफ यू सिक्योर 5 मार्क्स यू आर एट A1 लेवल, इफ यू सिक्योर बिटवीन 6 to 9 मार्क्स यू आर एट एलिमेंट्री लेवल, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये पूरा पूरी जो है वो डिवीजन आप लोगों के साथ है। तो इस हिसाब से हम बिल्कुल बहुत इजीली देख सकते हैं कि वेयर आर वी स्टैंडिंग एंड व्हाट इज आवर ड्रीम गोल। बट if you score well in this test, like if you score for example above 13, that doesn't mean कि you don't require improvement.
दिस दैट ओनली मीन्स कि हमें टिपिकल टिपिकल ग्रामर वाले कनंड्रम में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. वील जंप टू स्ट्रेट अवे टू द पॉइंट. बट अगर आप 9 से नीचे जाएंगे, फिर आप लोगों को मैं 0 से शुरू करवाऊंगी ग्रामर का. एंड द सेकंड टेस्ट यू विल बी टेक टुडे, दैट इज vocab टेस्ट. vocab टेस्ट इज आल्सो ऑफ 20 मार्क्स. और उसमें भी आपके स्कोर्स, जो भी आप स्कोर आएंगे आपके, इस चार्ट के अकॉर्डिंग यू कैन असेस योर सेल्फ कि वेयर आर यू स्टैंडिंग राइट नाउ. एंड यही जो है वो अप्लाई होगा ऑन योर रीडिंग एंड राइटिंग एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स. बट वो आपकी नेक्स्ट लेक्चर्स है ना, ये जो हमारा फर्स्ट वीक होगा, इसमें इंशाल्लाह ताला हम सारे असेसमेंट टेस्ट तीनों दिन लेंगे. और अब वी आर लेफ्ट विद few minutes. If you guys have any question, any query, you can just share with me. I am going to unmute you all. अब आप खुद को unmute कर सकते हैं and you can talk to me. This was all for today. I hope so कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा आज का लेक्चर. तो if you guys want to add any value, if you guys want to share anything, you are most welcome to share your thoughts. Because अब हमारे पास just 3 minutes हैं. उस 3 minutes में you can give your feedback. You can unmute yourself now. Do you have any questions or queries? If you're talking, I'm not able to listen to you because all of you are on mute. You can unmute yourself. Unmute yourself and no, ma'am. Oh, okay. These are the most sweet and most the cutest type of students जो बहुत मासूम मुंह बना के कहते हैं, no ma'am, we are done, you can go now. इकरा, हाउ वाज द लेक्चर? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप आज का लेक्चर कैसा था. और इफ यू गाइस वांट टू कंटिन्यू दिस सेशन, यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द ग्रुप. आप ग्रुप में मुझे बताएं. और अब जो नेक्स्ट लेक्चर्स की एक्सेस होगी, वो उन स्टूडेंट्स को होगी हु विल पे द फी. एंड उसके लिए आप सब लोगों को ऑलरेडी पता ही है जो हमारा सारा क्राइटेरिया है. 5,000 रुपीज है हमारी पर मंथ फी. यू कैन पे दैट फी एंड ज्वाइन आवर सेशन. उसके साथ साथ ये है कि अभी मैं आप लोगों के साथ एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगी. और जो हमारे इस लेक्चर के फीचर्स हैं, उसमें ये है कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग भी साथ साथ डेली शेयर होगी. हर लेक्चर की, आज वाले लेक्चर की भी रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी. और उसके साथ डेली आप लोगों का प्रैक्टिस, एक दिन हमारा लेक्चर होगा और नेक्स्ट डे आप लोगों का प्रैक्टिस डे होगा. बट प्रैक्टिस डे डजंट मीन एट ऑल कि आप लोगों का मेरे साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा. उस दिन हमारा लेक्चर नहीं होगा, बट यू आर सपोज टू सबमिट योर असाइनमेंट्स. और असाइनमेंट्स इस तरह से नहीं होंगी कि आपने बड़े लंबे चौड़े नोट्स लिखने होंगे. असाइनमेंट्स आपकी ये होंगी कि आप लोगों को के पेयर्स बनाएंगे हम, और उसमें आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी होगी. आज अब आप लोगों ने ये डिसाइड करना है कि आप लोग अपना पेयर, प्रैक्टिस पेयर किसके साथ बनाना चाहते हैं. यू आर मोस्ट वेलकम एंड फ्री टू मेक योर चॉइसेस. एंड अदरवाइज फिर मैं आप लोगों के पेयर्स बना दूंगी